Very good morning, children. Let us move to the last application of derivatives, that is maximum minimum. So what happens in this? A function will be given to you. You are supposed to find the maximum value of the function, or what is the value of x at which this function gives maximum value, or what is the value of x at which it gives minimum value. We'll come across various methods. Let us go for the simplest method first, that is without derivative. That will do. Then we'll move on to using derivatives. Once you learn all the methods, you can use any method to solve any sum. Okay? Clear? Let's start. First sum of exercise. F of x 2x minus 1 the whole square plus 3. Sorry. Now I want to find maximum value of this function. Let us see how we can deal with it. We know that no matter what is the value of x, this bracket with square will always be greater than equal to 0. हम कोशिश करेंगे कुछ functions का domain लिखने की. So here I know that 2x minus 1 the whole square will be greater than equal to 0. 2x minus 1 the whole square एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा. मुझे ये फंक्शन चाहिए, तो क्या मिसिंग है? प्लस 3 मिसिंग है. I'll add 3 on both sides. I'll get 2x minus 1 the whole square plus 3 greater than equal to 3. Correct? And this is nothing but my f of x. So it is coming that f of x will be greater than equal to 3. No matter x की वैल्यू क्या है, no matter what is x. So let us say x belongs to real के लिए इस फंक्शन की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी आएगी. It is 3 or more than 3. Therefore I can say minimum value of f of x is 3. मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x is 3. अब ये 3 कब आएगा? जब ये ब्रैकेट 0 होगा. ओरली वी कैन चेक इस फंक्शन की लोएस्ट वैल्यू 3 आएगी. कब? जब ये ब्रैकेट 0 होगा. when it will be minimum, when this bracket will be 0, that is when 2x minus 1 equal to 0, that is x equals half. तो जब x की वैल्यू हाफ होगी, इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आएगी, that is 3. This is the first way. If we know the domain of some function, we apply some operations to get f of x and find the answer. ठीक है? So the first way will be solving the sums. Second है minus of x minus 1 the whole square plus 10. Again I know that स्क्वायर ऑफ x लेंगे. मुझे पता है x माइनस 1 द होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा. यस. अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स माइनस ऑफ लेस देन इक्वल टू 0. नाउ क्या मिसिंग है? 10 दोनों जगह ऐड करेंगे. सो 10 माइनस x माइनस 1 द होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10. ये हो गया मेरा f of x. सो आई एम गेटिंग f of x इज लेस देन इक्वल टू 10. मतलब फंक्शन की वैल्यू 10 या 10 से कम आएगी मीन्स आई हैव गॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. क्या मिला मुझे? मैक्सिमम वैल्यू f of x कितना आएगा? 10. अब मैक्सिमम वैल्यू 10 कब आएगा? जब ये वैल्यू 0 हो जाएगा. दैट इज व्हेन आई कैन से दैट x minus 1 equal to 0. जब ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम. देयरफॉर x equal to 1. जब x को 1 पुट करोगे, फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी. It will be very difficult to find the minimum value over here. Okay, so we only have maximum value here, we only have minimum value here. It is not compulsory कि maximum minimum दोनों आएगा. ठीक है? Let us take
the third one in that now, sorry, the second one from your textbook, f of x 9x square plus 12x plus 2. Now see, remember, जब भी quadratic expression आता है, apply completing square method. This is the first stage, so we'll apply completing square method. तो क्या करेंगे, 9 कॉमन निकालेंगे, x square plus 12 by 9x plus 2 by 9. So this becomes 9 times x square plus 12 by 9x plus कुछ तो करना पड़ेगा, क्या आएगा वो, half into b the whole square. 3 4s are 3 3s are 2 2s are 4 by 9, करेक्ट, 4 by 9 तो हो जाएगा 2 by 9 minus 4 by 9, करेक्ट, तो हो जाएगा 9 times x plus 2 by 3 the whole square minus 9 और ये 9 कैंसल, 2 कितना आएगा, -2, बराबर, 2 minus 4 -2, करेक्ट. अगेन आई नो दैट 9 times x plus 2 by 3 the whole square बाय डिफॉल्ट 0 या 0 से बड़ा होगा, है ना, टेकिंग -2 ऑन बोथ साइड्स, तो आएगा 9 times x plus 2 by 3 the whole square -2 greater than equal to -2. ये हो गया मेरा f of x. So my f of x is greater than equal to -2. फंक्शन की वैल्यू -2 से ज्यादा आएगी, -2 से कम नहीं. So hence I can say minimum value of function is -2 when, अरे -2 कब होगा, जब ये ब्रैकेट 0 आएगा. कौन सा ब्रैकेट, 9 times x plus 2 by 3 क्या आएगा, 0. ये 0 हुआ तभी तो आंसर -2 आएगा. when 9 times x plus 2 by 3 कितना है, 0. that is when x is -2 by 3. तो x equals -2 by 3 पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आएगी, मैक्सिमम फाइंड करना डिफिकल्ट होगा. ओके, अंडरस्टूड. Let us take the fourth one also to understand. ठीक है, next one children, fourth one, f of x is equal to x cube plus 1. अब बात करते हैं x cube. x cube का मतलब क्या है, आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है. So I can say minus infinity less than equal to x cube less than equal to plus infinity, है ना. x क्यूब का डोमेन रेंज कुछ ऐसा आएगा, मुझे +1 चाहिए, so माइनस इंफिनिटी +1 माइनस इंफिनिटी x क्यूब +1 लेस देन इंफिनिटी. तो मेरा f ऑफ x जो आ रहा है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में आ रहा है. हेंस आई कैन नॉट से व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू और व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, कि कोई भी नंबर नहीं आ रहा है. देयरफॉर neither maximum nor minimum. ठीक है. So first method is we are trying to think the domain of certain functions, then we do certain operations to find the maximum or minimum value. ठीक है. Now question number 2 again same है, उसका first one it is f of x equals mod x plus 2 minus 1. क्या f of x, mod x plus 2 minus 1. अगेन हमें पता है mod x plus 2, mod के अंदर का mod हमेशा पॉजिटिव आता है. क्या आता है mod हमेशा पॉजिटिव. सो mod of x plus 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा. अब मुझे क्या बचा है, -1. सो आई विल डू -1 on both sides. करेक्ट, सेम हो गया. ये क्या आएगा मेरा f of x. So f of x is greater than equal to -1. मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, -1, ग्रेटर देन है.
So I'll say minimum value is -1 when, अब मुझे आंसर -1 चाहिए, मतलब x plus 2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. So when x plus 2 is 0, that is x equals -2. तो -2 पे इस फंक्शन की वैल्यू सबसे कम आएगी. -2 पे इस फंक्शन की वैल्यू सबसे कम आएगी. Are you getting it? No maximum value, only you will get minimum value, that is -1. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड वाला सेम है, आप करोगे. थर्ड वाला करता हूं. f of x is sin 2x plus 5. अगेन sin 2x का मुझे पता है sin थीटा हमेशा -1 और 1 के बीच में लाया करेगा. ऑलवेज -1 और 1 के बीच में लाया करेगा. अभी क्या करना है, 5 ऐड करना है. 5 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 4. 5 प्लस sin 2x लेस देन इक्वल टू 6. मतलब मेरा फंक्शन 4 और 6 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है. किसके बीच में, 4 और 6 के बीच में. सो आई कैन से मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6, है ना, और मिनिमम वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 4. एम आई राइट? मैक्सिमम वैल्यू 6 आएगी, मिनिमम वैल्यू 4 आएगी. दे आर जस्ट आस्क्ड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, तो हमें से उतना ही लिखना है. नो नीड टू फाइंड एट व्हाट x. क्लियर? चौथा भी सेम है, सिर्फ मॉड्यूलस है. आप एक बार ट्राई करोगे. एनी डाउट्स यू विल आस्क मी. फिफ्थ वन इज वेरी नाइस. नाउ लेट अस स्टार्ट फॉर फिफ्थ वन. फिफ्थ वन क्या दिया है, h of x दिया है x plus 1 when x belongs to -1 to 1. स्पेसिफिक डोमेन दिया है, सिर्फ -1 और 1 के बीच में बात करना है. तो x कहां लाया कर रहा है, -1, सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा, राउंड ब्रैकेट है. x लेस देन 1, -1 लेस देन x लेस देन 1. प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 लेस देन x लेस देन 2. क्या आएगा, 0 लेस देन x लेस देन 2. सॉरी 0 x plus 1, that is 0 less than f of x less than 2. मतलब फंक्शन की वैल्यू 2 से कम आएगी और फंक्शन की वैल्यू 0 से ज्यादा आएगी. करेक्ट? सो आई कांट से देयर आर मेनी वैल्यूज. कौन सा नंबर आई डोंट नो, हियर आल्सो व्हिच नंबर आई डोंट नो. सो आई राइट नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. क्या लिखेंगे, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. ठीक है. Now children, let us learn the actual application of derivative. Derivative की मदद से how can I find the maximum and minimum values? So again there are two parts. One is local maxima minima, other is absolute maxima minima. पहले हम local पे फोकस करते हैं, फिर हम आएंगे absolute पे. ठीक है. Now imagine करो a function is given to you as f of x equals f of x equals, you can say x cube minus 3x plus 3. सपोज ये फंक्शन दिया है, हमें चेक करना है इसका मैक्सिमा मिनिमा या इसका लोकल मैक्सिमा मिनिमा. फंक्शन देख के समझ में आता है, डोमेन रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जाएगा. It will be difficult to find by the normal method. So let us, what we do, we'll take help of derivative. हम निकालते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3. क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, 3x स्क्वायर माइनस 3. The moment you get derivative, simplify it, 3x स्क्वायर माइनस 1. अब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करो. पुट फर्स्ट डेरिवेटिव एज 0. तो क्या आएगा, 3 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. दैट इज x इक्वल्स 1 एंड माइनस 1. द मोमेंट यू पुट डेरिवेटिव 0, मतलब यू आर फाइंडिंग
tangents parallel to x axis। डेरिवेटिव 0 है मतलब tangent x axis को पैरेलल है। ये वो जगह है जहां से ग्राफ या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। These are the turning points you can say। So 1 और -1 दो टर्निंग पॉइंट्स है मेरे पास इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए। आप डेस्मोस एप्लीकेशन में जाइए, एक ग्राफ ड्रॉ करिए, आपको -1 और 1 पे टर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे। The moment you get turning points, draw the number line, write the roots in ascending order. You know that how to write that। यहां पर आएगा बाय डिफॉल्ट प्लस, दोनों लीनियर फैक्टर्स है तो ये साइन चेंज होगी माइनस और ये होगा प्लस। स्टार्ट करेंगे प्लस से, देन माइनस, देन प्लस। तो इफ यू ऑब्जर्व हियर इट इज चेंजिंग फ्रॉम प्लस टू माइनस। ये जो पार्ट है प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये -1 के ऊपर टर्निंग पॉइंट जो है मेरा डेरिवेटिव प्लस से माइनस पे जा रहा है। देयरफॉर आई विल से f इज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल्स -1। -1 पे फंक्शन लोकली मैक्सिमम है। -1 पे क्या है फंक्शन लोकली मैक्सिमम। अब यहां से यहां देखो, इस 1 के ऊपर देखो, 1 से पहले माइनस था, 1 के बाद क्या था प्लस, तो माइनस से प्लस पे जा रहा है। अगर माइनस से प्लस पे जा रहा है मींस f इज मिनिमा एट x इक्वल टू 1। क्या आएगा, f इज मिनिमा एट x इक्वल टू 1। प्लस से माइनस जाता है तो उस पॉइंट के लिए मैक्सिमा, माइनस से प्लस पे जाता है उस पॉइंट के लिए मिनिमा। अब ये तो मालूम पड़ गया फंक्शन -1 पे मैक्सिमम है, +1 पे मिनिमम है। अब मुझे इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम फंक्शन क्या आएगा, f ऑफ -1। तो -1 पुट करो तो -1 +3 2 2 + 3 5। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 5। अब मिनिमम निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू आएगी f ऑफ 1। क्या आएगा, f ऑफ 1 कितना होगा, 1 -3 -2 -2 + 3 1। तो इस फंक्शन की एक मिनिमम वैल्यू 1 है और एक मैक्सिमम वैल्यू 5 है। ठीक है, और भी हो सकती है, तो हमने से उसी पॉइंट पे सेम सम चिल्ड्रन, सॉरी सेम टाइप का नेक्स्ट सम, x³ - 3x। अगेन डेरिवेटिव लगाएंगे इसको, तो आई विल गेट g' as 3x² - 3। Without any doubt, I will put first derivative as 0. This is the first method, again a new method. इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। तो g' को 0 पुट किया तो ऐसा 0 आएगा, that is x² - 1 0 आएगा। अगेन टर्निंग पॉइंट्स आर 1 एंड -1, पिछली बार की तरह। तो ये 1, ये -1 प्लस माइनस प्लस। अगेन देखो -1 के लिए प्लस से माइनस पे जा रहा है, मतलब इट इज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू -1। अब 1 के लिए माइनस से प्लस पे जा रहा है, माइनस से प्लस, सो आई राइट मिनिमम एट x इक्वल टू 1। तो -1 पे लोकल मैक्सिमा है, +1 पे लोकल मिनिमा है। अब लोकल एब्सोल्यूट क्या होता है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको एब्सोल्यूट में दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सम चिल्ड्रन, लेट अस फर्स्ट गो फॉर अलजेब्रिक सम्स, देन ट्रिग्नोमेट्री पे जाएंगे। x³ - 6x² + 9x + 15। अगेन आई अप्लाई डेरिवेटिव, f' मिलेगा, दैट इज 3x² - 12x + 9। Moment I get first derivative, I will put first derivative as 0। क्या आएगा, 3x² + 9 = 0। 3 कॉमन निकालेंगे, अगेन 2 टर्निंग पॉइंट्स आएंगे, है ना। एक फैक्टर क्या आएगा 3 और दूसरा फैक्टर क्या आएगा 1। ये 1
और ये 3. Am I right? It will be x minus 1, x minus 3 equal to 0. बराबर. तो ये 3 के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव. तो अगेन 1 पे देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा है. सो मैक्सिमम एट x इक्वल्स 1. 3 के लिए देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव. सो मिनिमम एट x इक्वल्स 3. ठीक है. अब x की वैल्यू 1 पुट करो, आपको मैक्सिमम f ऑफ x मिलेगा. x की वैल्यू 3 पुट करो, आपको मिनिमम f ऑफ x मिलेगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट सम, f ऑफ x इक्वल्स x रूट 1 माइनस x 0 से 1 के बीच में. अगेन डेरिवेटिव लगाएंगे इसको. लेट अस अप्लाई डेरिवेटिव. f डैश x क्या आएगा? रूट 1 माइनस x प्लस x अपॉन 2 रूट 1 माइनस x इंटू 1 माइनस x का माइनस 1, है ना. फिर से फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे. सो पुट f डैश x एज 0. तो क्या आएगा? 1 माइनस x अपॉन 2 रूट 1 माइनस x. दैट इज 1 माइनस x 2 times equals x. 2 minus 2x equal to x. That is 3x equals 2. So x कितना आ रहा है? 2 by 3. So 2 by 3 is my turning point, है ना. यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर आएगा माइनस. सो 2 by 3 पे माइनस से प्लस पे जा रहा है. कैसे जा रहा है? माइनस से प्लस पे. सो आई विल से मिनिमा at x equals 2 by 3. Let us check. Minima at x equals 2 by 3. ठीक है. Is it clear? Also 2 by 3 0 और 1 के बीच में आ रहा है. So my problem is solved. 0 और 1 के बीच में आ रहा है. So minima at x equals 2 by 3. Our next question, children. Prove that the following functions do not have maxima or minima. First one in that, it is f of x is equal to e raised to x. देखो, x पॉजिटिव रहेगा तो भी ये पॉजिटिव है, x नेगेटिव रहेगा तो भी ये पॉजिटिव आएगा. करेक्ट. ये डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव भी निकाल लो. f डैश x आएगा e raised to x. क्या आएगा f डैश x? e raised to x. करेक्ट. और एक बात देखनी हो तो यहां भी देखो सेम आ रहा है. वी नो दैट e रेज टू x f डैश x क्या है? e रेज टू x. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप नाउ? पुट f डैश x इक्वल 0. दैट इज e रेज टू x इक्वल टू 0. ऐसा कोई भी x नहीं है जिसके e रेज टू x 0 आएगा. नॉट पॉसिबल. देयर इज नो सच x for that e raised to x is 0. Therefore function has neither maxima nor minima. ठीक है. नेक्स्ट, g of x equals log x. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? g dash x 1 upon x. Again there is no x available for which g dash x 0 आएगा. g dash x अगर 0 लिया तो x मुझे मालूम नहीं है. Hence function has neither maxima nor minima. और क्या बोल सकते हो? x पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव वैल्यू, x नेगेटिव लिया तो नेगेटिव वैल्यू. तो अगेन इट विल फ्लक्चुएट फ्रॉम बोथ साइड्स. सो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. ठीक है. वन h of x x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. इसको लगाओ डेरिवेटिव. h डैश x 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. अब h डैश x को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब आप सिंप्लीफाई करके देखो, आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे. क्या मिलेंगे? कॉम्प्लेक्स रूट्स. हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं. अगेन फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. ठीक है. द नेक्स्ट लेक्चर
we'll be seeing how to find absolute maximum minima and some trigonometric part of this topic and word problems. Okay, thank you.